Hello, my dear students. My name is Akash Chaudhary. I am your reasoning mentor. Today we are discussing STSE Math section. Let's we start from question number first. As you see, question number first say, if triangle denotes 12, square denotes 10, circle denotes 4, arrow denotes 2, then ट्रायंगल की जो वैल्यू है वो आपके लिए कितने गिवन है 12, एरो के लिए जो वैल्यू है 2, स्क्वायर के लिए 10 और ये 4. एज यू सी ये मल्टीप्लाई माइनस माइनस, तो 12 इंटू 2 कितना 24, माइनस 10 माइनस 4 24 माइनस 10 माइनस 4 is minus 14. Our answer is 10. But options also encoded, which means 10. 10 means square. That's our answer is option D is correct answer. Our next question is, if given x equal 7, y equal 3, z equal 4, a equal 8 and b equal 5. In the given total, find out the missing symbol. As you see b means 5 plus x means 7 plus question mark plus a means 8, z means 4 plus y means 3 equal 35. 5 plus 7 12 plus 8 20 plus 4 24 plus 3 27 question mark plus 27 equal 35. If we find the value of question mark equal 35 minus 27, our answer is 8. Which option denotes 8? A, B, X, Z. As you see, A equal 8, that means option B is correct answer. Our next question is, direction 6 into 8 into 3 is equal to 243. 7 into 6 into 1 is equal to 211. 8 into 4 into 3 is 163. 5 into 8 into 7 equal what? As you see, 6 into 8 into 3 equal 243. As you see, our last digit is same in every equation. 1 3 6 into 8, if we do half, 4, and 6 into 4 24, our last digit as it is same, our answer is 24 3. As we do 5 into half of 8, 4 20, and our last digit is as it is same 2107. That means 207, option D is correct answer. Our next question is, 148 denotes 12, 200 denotes 14, 17 denotes 293. What is the 15? As you see, 12 square is 144 plus 4 is 148. As you see, square of 14 is equal 196 plus 4 is equal to 200. Then what will be for 15? 15 square is 225. अपनी साइड से 4 ऐड करेंगे, आवर आंसर होगा 229. 229, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 7 16. 8 16 एंड 7. हमें 8 एंड 7 से 16 फाइंड करना है. दैट मीन्स 8 इंटू 7 56, अपनी साइड से 4 ऐड किया 60. एज इट इज सेम वे में आप देखेंगे कि 12 इंटू 5 60, अपनी साइड से 4 ऐड किया 60, अपनी साइड से 6 ऐड किया, that is 66. What is the logic for adding 4 and adding 6? Then you say
half of first number, half of second number. As you see, 26 into 4. That is 4, 16, 24. 4 2 ja 114. What will we add? Half of 26, 13. Our answer is 117. Option C is correct answer. That means हमें 8 and 7 का मल्टीप्लाई करना था और जो भी फर्स्ट नंबर था उसका हाफ ऐड करना था. As you see, 12 into 5 plus half of 12 is added. 26 into 4, half of 26 is added कितना? 13. Our answer is 117. Next question is NKHE. NKHE. What is for next number? 14, 11, 8, 5. Minus 3, minus 3, minus 3, minus 3, 2. 2 denotes B. Our correct option is option B is correct answer. Next question is B, Y, G, T, L, O, Q, J. What is for next? B, Y plus 5, G से L plus 5, L से Q plus 5, Q plus 5 is 22. 22 means V. Y to T minus 5, T to 15 minus 5, O to J minus 5, J to minus 5, that is E. Our correct answer is VE. Option B is correct answer. Next question is H, T, D, J, S, G, L, R, J. H to J plus 2, J to L plus 2, J to L2 plus 2, that means 14. 14 means N. What is first N? 20, 90, minus 1, minus 1, minus 1, that means Q. D plus 3, J plus 3 plus 3, that means J plus 3, 13. 13 means M. N, Q, M is our correct answer. N, Q, M is our correct answer. N, Q, M, option A is correct answer. Next question is 6 to 15. 6 cube minus 1 is 215. What will be for 7? 7 cube minus 1, 342. Option D is correct answer. Next question is 15, 7. 7 square plus 1, 15. 12 square plus 1 is 145. Our correct answer is 12. Option B is correct answer. Next question is, if 10 June 2018 was Sunday, 10 June 2018 Sunday, what was the day of 10th June 2020? That means, as you see, 10th June is a common, that means ये कैंसिल हो जाएंगे. यहां आपको देखना है इन दोनों का डिफरेंस प्लस बिकम लीप ईयर. 18 एंड 20 में डिफरेंस कितना है? 2 प्लस लीप ईयर कौन सा है? केवल और केवल एक 10, 20, 2 plus 1, that means 3. Our odd days is 3. 18 to 20, that means हम फ्यूचर की ओर बात कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं. that means ये कैसे होंगे odd days? प्लस के. संडे में प्लस 3 करेंगे आप तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. आवर करेक्ट आंसर होगा वेडनेसडे. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज M means 13, MAN means 28. As you see,
MAN 13, 1, 14 सभी को आप सम करेंगे, दैट मीन्स 28। आपको फाइंड करना है मोर 13, 15, 18 एंड 5। ऐड कीजिए, ऐड करेंगे 13 प्लस 13, 15, 28 एंड 18 और 5 23, दोनों को ऐड किया 51। आवर करेक्ट आंसर होगा 51, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रोड इज रिटन एज SNBC, then how will fish be written in that code? As you see, ROAD SNBC, RS +1, ON -1, AB +1, DC -1. That means our logic is alternative addition and subtraction, +1, -1, +1, -1. Our answer is also FISH. पहले +1 करेंगे तो F +1 that means G, -1 करेंगे that means H, +1 करेंगे that means T, -1 करेंगे that means G. GHTG, GHTG, option A is correct answer. Our answer is option A. Next question देखेंगे, if P is south of Q, our direction is east, west, north, south. That is northeast, that is southeast, that is southwest and that is northwest. अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं, if P is at south of Q, that means P Q के दक्षिण में है। P is south of Q, that means P is south of Q, and R is east of Q, and R is east of Q, that means R Q के पूर्व में है। Then which direction is P respect to R? Our answer होगा, ये फाइंड करना आपको। तो अभी आपसे बोला, यहां से जब आप सेंटर पॉइंट बनाएंगे तो ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो इसके मिड में ये कौन सी डायरेक्शन है? तो आप कहेंगे साउथ वेस्ट, दैट मीन्स आवर आंसर होगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दक्षिण पश्चिम हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, in a group of cows and hens, by counting it's found that number of total heads are 50 and number of total legs are 180. हमसे क्या कहा है कि हमारे पास कुछ टर्म हैं, कुछ काव हैं प्लस हेन्स है, इनके जब हेड्स को काउंट किया जाता है तो ये टोटल कितने होते हैं? हेड्स जो हैं 50, बट इनके लेग्स को जब काउंट किया जाता है तो ये लेग्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 180। कितने हैं माय डियर स्टूडेंट्स? 180। आप एक सिंपल सी बात समझिए कि हेड्स का मींस ये है कि हेन का भी एक ही हेड होगा एंड काउ का भी एक ही हेड होगा, तो काउ प्लस हेन टोटल कितने होंगे? 50। अब हमें इसमें ये फाइंड करना है कि हेन्स आर देयर, टोटल मुर्गियां कितनी है, हेन्स कितनी है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि काउ के 4 लेग होते हैं एंड हैन के 2 लेग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनको 2 + 2 और इसे भी 2, तो अगर हम मान के चलें, ऐसा अज्यूम करें कि 2 ही पैर तो मुर्गी के हैं और 2 ही पैर काऊ के हैं, तो हमारे पास टोटल कितने पैर होने चाहिए? 4। कितने? 4। बट अभी हम दोनों के अगर 2 ही माने, फॉर एग्जाम्पल अभी हम दोनों के 2 ही अज्यूम करें, तो आप कहेंगे कि 2 इनके 2 इनके, दैट मींस टोटल कितना है? 50। हेड कितने हमारे पास? 50। और अगर सभी के हमने 2 ही लेग माने हैं तो नंबर ऑफ टोटल लेग जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए?
100। कितने होने चाहिए? 100। लेकिन हमारे पास लेग कितने हैं? 180। दैट मीन्स कितने लेग्स एक्स्ट्रा हैं? 18 लेग्स एक्स्ट्रा हैं। और ये 18 लेग्स एक्स्ट्रा किसके होंगे? काऊ के, क्योंकि काऊ के ही तो पैर एक्स्ट्रा होते हैं 2। तो हम क्या करेंगे, इस 80 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो दैट मीन्स काऊ का नंबर्स आए कि हमारे पास काऊ कितने हैं? 40। और जब 50 में से 40 काऊ हैं तो फिर हैंस कितने होंगे? आप कहेंगे 10 हैन होंगे, मुर्गियां होंगी हैंस, और हमारे पास 14 कितने होंगे? काऊ। आपको क्रॉस चेक करना है, एक काऊ के कितने लेग्स हुए? 4। तो 14 इंटू 4 160, और मुर्गी के कितने होंगे? 10। 10 इंटू 2 20, टोटल कितने हो गए? 160। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को अब देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे, अब विदाउट पेन एंड कॉपी, कि आपके पास टोटल हेड कितने थे? 50। आपने सभी के 2 लेग्स काउंट किए, तो 15 इंटू 2 100, लेकिन हमारे पास लेग्स कितने हैं? 180। दैट मीन्स 80 एक्स्ट्रा है। उस 80 को जो एक्स्ट्रा लेग्स किसके हैं? काऊ के, कितने? 2, उससे डिवाइड किया, कितना आया? 40। दैट मीन्स काऊ के नंबर्स कितने हैं? 40। तो बाकी जो रिमेनिंग 10 है वो कौन सा होंगे? हैन। और हमारे आंसर हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ x इज सिस्टर ऑफ y, इफ x इज सिस्टर ऑफ y, माइनस मीन्स फीमेल, y इज डॉटर ऑफ k, y इज डॉटर ऑफ k इज हस्बैंड ऑफ l, दैट मीन्स l क्या होगी? वाइफ होगी। हाउ l इज रिलेटेड टू y, हाउ इज l रिलेटेड टू y, दैट मीन्स y का l कौन है? y का l कौन है? तो y की k कौन है? फादर। और जो फादर की वाइफ होती है वो इनकी कौन होंगी? y की मदर। तो हमारा पहला सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हाउ इज l रिलेटेड टू y मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब of metal is 18 centimeter, 16 centimeter and 14 centimeter. Respectively, it by melting it, some equal cubes of 4 side centimeters are formed. Then number of cubes is. जब भी किसी बड़े क्यूबॉइड को मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाएंगे तो उनका वॉल्यूम जो होता है वो एग्जैक्टली कितना होता है? इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड करें, ऑफ क्यूबॉइड इनटू n क्यूब्स बनेंगे छोटे छोटे और वॉल्यूम्स उनका कितना होगा? तो आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि n इक्वल बराबर क्यूबॉइड अपॉन क्यूब। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 18 इंटू 16 इंटू 14 अपॉन क्यूब का होगा 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 16 कैंसिल हुआ, 2 से 2 टाइम, 2 से कितना? 9 टाइम, 2 से कितना है? 7 टाइम। तो हमारे पास नंबर्स बचे 9 इंटू 7। दैट मीन्स टोटल जो स्मॉल क्यूब्स बनेंगे वो कितने क्यूब्स बनेंगे? 63। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एज यू सी इन अ रो ऑफ स्टूडेंट A and B are standing 6th and 7th position. For example, A and B are 6th and 7th position from left. That means A 6 पर है, इससे पहले कितने होंगे? 5%। B 7 पर है तो इससे पहले कितने होंगे? 6%। किधर? लेफ्ट साइड। And C and D are standing 4th and 5th position respectively from right. C and D 4th, that means 3% होंगे तो C 4th हो गया और D कितना हो गया? 5th हो गया। If when B and C are interchange their position, दैट मीन्स C यहां होगा, B यहां होगा, और जब ये यहां से पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो ये 15th प्लेस पर हो जाता है। एज यू सी B विल बिकम 15th फ्रॉम लेफ्ट। अब ये 15th है लेफ्ट पर, तो इससे पहले कितने पर्सन्स होने चाहिए? तो आप कहेंगे 14 पर्सन्स। तो B से पहले 14 तो 5 तो ये रहे 1, 5 प्लस 1 प्लस 2 1 कितने हो गए? 7 प्लस 1 D कितना हो गया? 8। तो दैट मीन्स हमें चाहिए टोटल कितने? 14 पर्सन। तो यहां बीच में कितने पर्सन होंगे? 6। क्वेश्चन है डी पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब डी की पोजीशन लेफ्ट फाइंड करनी है तो आप काउंट कीजिए नंबर्स 5 प्लस 1 6 7 प्लस 6 13। तो डी कौन से प्लेस पर होगा? 14th प्लेस पर होगा। दैट मीन्स आवर सी इज आवर करेक्ट आंसर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
90. How many students are standing between D and A? As you see, D and A 6 plus B 7. 7 persons are standing between A and D. Our next question is, after interchange of position B and C, C's position from right. क्वेश्चन फिर से फॉर्म करना पड़ेगा अपना, मिट चुका है. A and B are standing 6 and 7 A B, that means यहाँ 5 पर्सन होंगे, तभी तो ये 6 and 7 होंगे. C and D are third and fourth, that means fourth and fifth, that means यहाँ 3 पर्सन होंगे, तभी ये फोर्थ एंड फिफ्थ होंगे. दोनों ने इंटरचेंज किए तो यहाँ C आएगा, यहाँ B आएगा. अभी हम देख चुके थे यहाँ बीच में कितने पर्सन थे, 6 थे. आपसे पूछा है कि आफ्टर इंटरचेंज B and C, C पोजीशन फ्रॉम राइट. C पोजीशन राइट, तो देखो सबसे पहले थर्ड 3 प्लस C 4 5 प्लस 6 11, तो ये C कितने पे हो जाएगा, 12th प्लेस पर. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल्स आर प्लेयर. अब देखिए वेन डायग्राम आपको गिवन है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स फीमेल, दैट मींस ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. गिवन है ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड, दैट मींस ये एजुकेटेड को रिप्रेजेंट करता है. सर्कल रिप्रेजेंट्स रूरल, ये रूरल्स को रिप्रेजेंट करता है. एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट प्लेयर्स. आपको फाइंड करना है हाउ मेनी फीमेल्स आर प्लेयर, दैट मींस फीमेल्स आर प्लेयर, वो रेक्टेंगल का भी पार्ट होना चाहिए, प्लस में पार्ट होना चाहिए किसका, स्क्वायर का. तो अब देखिए कौन से दो नंबर्स कॉमन है, 15 प्लस 8, तो हमारे आंसर होगा 15 प्लस 8 23. अब यहां एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि सर उसमें तो बोला ही नहीं कि रूरल हो. अगर फॉर एग्जांपल आपको एक फॉर्म भरते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, फॉर एग्जांपल आपने एक कोई कंबाइंड एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल किया, या कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें मांगा है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो क्या आप एलिजिबल नहीं है. तो हम क्या याद रखते हैं वेन डायग्राम में कि जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हैं उनको ऐड किया जाता है, काउंट किया जाता है. तो उसने बोला है कि प्लेयर्स और फीमेल हो, साथ में रूरल भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तुम्हारा आंसर होगा 15 प्लस 8 23. कभी भी ये 15 आंसर इसका नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी रूरल फीमेल्स आर एजुकेटेड. अभी हमने देखा था कि रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फीमेल्स को, ये प्लेयर था और ये रूरल थे, और ट्रायंगल डिनोट कर रहा था किसको, एजुकेटेड. ठीक है. आपसे पूछा हाउ मेनी रूरल फीमेल्स आर एजुकेटेड. रूरल फीमेल्स दैट मींस वो सर्कल का भी पार्ट हो और रेक्टेंगल का भी पार्ट हो. एजुकेटेड दैट मींस ट्रायंगल का भी पार्ट हो. तो कौन सा नंबर कॉमन है तीनों में, 6. तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 6 वाला. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी मेल्स आर एजुकेटेड. आपको पता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल, फीमेल्स को. ये ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे एजुकेटेड को. और ये स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेयर को. और ये रूरल. आपसे पूछा है कि हाउ मेनी मेल्स, दैट मींस वो फीमेल का पार्ट नहीं होना चाहिए, दैट मींस रेक्टेंगल का पार्ट नहीं होना चाहिए, और एजुकेटेड हो. तो आप कहेंगे कि एजुकेटेड में इसका पार्ट नहीं हो, तो ये कितने परसेंट दिख रहा है आपको, 7. और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाउ मेनी रूरल फीमेल्स आर नाइदर एजुकेटेड नॉर पीपल. अब देखो ये रूरल था, ये प्लेयर था, ये वुमेन्स थे यानी फीमेल थे, और ये एजुकेटेड था. अब उसने बोला हाउ मेनी रूरल फीमेल्स, दैट मींस वो स्क्वायर का, सर्कल, रेक्टेंगल का पार्ट होना चाहिए, और रूरल दैट मींस सर्कल का भी पार्ट होना चाहिए, पर नाइदर एजुकेटेड दैट मींस वो ट्रायंगल का पार्ट नहीं होना चाहिए, नॉर प्लेयर दैट मींस वो किसका पार्ट नहीं होने चाहिए, स्क्वायर का भी पार्ट नहीं होना चाहिए. तो कौन सा नंबर ऐसा दिख रहा है आपको जो रूरल में और वुमेन्स में कॉमन है बट ट्रायंगल और स्क्वायर में नहीं है, तो ये 14. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी रूरल मेल्स आर प्लेयर. अब रूरल मेल्स आर प्लेयर,
तो आपको पता है ये मेल है, ये वुमेन है, ये रूरल है, तो रूरल मेल्स आल प्लेयर, इसका मींस वुमेन में नहीं आना चाहिए, तो कौन सा कॉमन है? 12, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 0, यहां 0 के बने 63 26 क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है 26, बट यहां क्या आ रहा है? -1। अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? अगर आप देखें तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हो सकता है ना 1 का क्यूब -1, ये हुआ 3 का क्यूब -1, और ये कितने का क्यूब हुआ? 4 क्यूब -1। तो यहां कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे 1 2 क्यूब -1, तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 से -1 किया 7, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें इन 4 नंबर्स का यूज करके मिड वाला नंबर फाइंड करना है। दैट मीन्स अगर हम 14 को डिवाइड करें 2 से एंड 16 को डिवाइड करें 4 से, तो यहां कितना आएगा? 7, और यहां कितना आएगा? 4, और इन दोनों का सम किया तो हमें कितना मिला? 11। दैट मीन्स सेम 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7, और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना? 9, 9 + 7 16। तो अब हमें आंसर करना है, तो 18 को तो डिवाइड करिए आप कितने से? 3 से 6, 40 को डिवाइड करिए कितने से? 5 से 8, और इन दोनों का कर दीजिए सम, कितना आ गया? 14, और यही आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, फाइंड द मिसिंग टर्म ए ई के। देखिए ये 1 5 11, तो कितना हो रहा है? +4 एंड +6, सेम +4 +6, तो यहां भी देखिए +6 तो हो गया। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए यहां से +4 करने पर आए, तो Q कितने पर होता है? 17 पर, तो क्या आना चाहिए यहां? 13, तभी तो +4 करेंगे, और 13 का मींस M। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is son of C. A is son of C. C and D are sisters. C and D are sisters. That means दोनों फीमेल हैं। F is mother of E. अभी पता नहीं F का किससे है। F is mother of E. B is a sister of A. B is a sister of A. E is brother of D. E is brother of D. और अभी आपको पता है कि E की जो F है वो क्या है? मदर है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। हाउ इज C रिलेटेड टू F? तो आपको फाइंड करना है कि F का C से क्या रिलेशन है। तो F का C कौन है? तो देखिए F का ये कौन है? सन है, इसकी ये दोनों सिस्टर्स हैं, तो इसकी ये कौन हो जाएगी? डॉटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाउ इज A रिलेटेड टू E? फिर से बनाना पड़ेगा वो। A इज सन ऑफ C, ठीक है। C एंड D आर सिस्टर्स, दोनों सिस्टर्स हैं। अभी हमने देखा था आगे गिवन है E इज ब्रदर ऑफ D, एंड D के जो मदर थी वो कौन थी? F, ठीक है। B इज अ ब्रदर ऑफ, B इज अ सिस्टर ऑफ A। हाउ इज A रिलेटेड टू E? A रिलेटेड टू E, तो E की A कौन होगा? तो देखिए E की ये कौन है? सिस्टर। ये भी कौन है? सिस्टर। और सिस्टर की ये क्या है? डॉटर। तो कौन होगी? हाउ इज A रिलेटेड टू E? E का A कौन होगा बताइए इसमें, ठीक है। B इज अ सिस्टर ऑफ A, ठीक है। तो ये सिस्टर है, तो ये, अब यहां नेफ्यू नीस तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या होगा? नेफ्यू ही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ इज C रिलेटेड टू B? अभी हमने देखा था कि A इज सन ऑफ C, C एंड D आर सिस्टर्स, एंड आपको बोला है E इज अ ब्रदर ऑफ D, एंड D की मदर कौन है? F, और B कौन है? E की सिस्टर है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। हाउ इज C रिलेटेड टू B? अब C रिलेटेड टू B, तो B की ये C कौन होगी ये बताइए। दोनों क्या है? भाई बहन है, इनकी ये कौन है? मदर है, तो C B की भी कौन होगी? मदर होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। लास्ट में भी, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी नेफ्यू होगा, बिकॉज यहाँ A क्या है? मेल है। नेक्स्ट,
विच नंबर हैज कम मैक्सिमम टाइम्स, चलिए ऑप्शन से डिराइव करते हैं। 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 कितने टाइम्स आया है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 कितने टाइम्स आया है, तो आप कहेंगे 1 2 3, एंड 5 कितने टाइम्स आया है, तो 1 2, 5 कितने टाइम्स है, 1 2। तो अब बताइए इसमें सबसे मोर देन टाइम मैक्सिमम टाइम्स कौन है, 3, कितने टाइम्स, 6 टाइम, तो आवर आंसर इज 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sky is star, star is earth, earth is cloud, cloud is tree, tree is book, when where does the word fly, where does the word fly in the sky, sky is called star, that our answer is option D. Next question, in a certain code language word is written 4 1 2 9 2 3, D means 23 15 18 and ये 4, अगर we wrote right side that is 4 12 9 23, यही सेम कोड गिवन है, दैट मीन्स जो नंबरिंग की गई है वो कैसी की गई है, राइट साइड से। आपको बताना है वुमेन का, राइट साइड से नंबरिंग बताएंगे तो ये कितना होगा 4, ये होगा 12, ये होगा 14, 4 12 14 4 12 14, केवल ऑप्शन ए ही मैच हो रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ऐसे फिगर के लिए आप याद रखेंगे कि एक फिगर होता है, इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो 1 2 1 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब इसको जितने फिगर्स में रिपीट करते जाएंगे हर बार, जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाहर एक और बना दिया जाए ऐसा, तो ध्यान रखेंगे जितने बड़े फिगर हैं 5 इंटू 2 कर दीजिए, 3 हैं तो 3 कर दीजिए, तो यहाँ कितने 1 2 3, हर एक में 5 बनेंगे, 5 इंटू 3, तो आपका आंसर होगा कितना 50, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What will be the angle between the hour and hour minute at clock of 8:24? दो फॉर्मूले हो सकते हैं, एक तो आप 16h दैट मीन्स 8 माइनस 11 इंटू 24 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे, या फिर दूसरा शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं आप, 8:24 गिवन है, आपको करना क्या है, 8 को भी मिनट में कन्वर्ट किया 40, और ये कितना मिनट रहेगा 24, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आ गया 16 मिनट का डिफरेंस है, 1 मिनट में मिनट एंड कितना चलती है 6 डिग्री, तो 16 मिनट में कितना चलेगी 96। अब इसके बाद में आर एंड भी आगे रोटेट हुई होगी, अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो मिनट का हाफ ऐड कर देंगे, अगर ये डिफरेंस नेगेटिव है तो मिनट का हाफ माइनस कर देंगे, तो 24 का हाफ 12 ऐड किया, 108 इज आवर आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो आप फॉर्मूले से नोट कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे, यही सेम आंसर आएगा 16h माइनस 11m/2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1/4 ऑफ 50% अ नंबर, फॉर एग्जांपल x है, उसका 1/4 ऑफ 50%, देन 50% एंड 1/4 इक्वल है कोई अदर नंबर है y, उसका कितना है 60%, और 60% का भी कितना है 2/3। मैंने परसेंट सिंबल इसलिए यहां यूज नहीं किया क्योंकि परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर्स काट लीजिए, x अपॉन y फाइंड करना है आपको, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 3 से कितने टाइम कैंसिल होगा 2 टाइम, तो ये होगा आपका 5x अपॉन 4 इक्वल में ये होगा आपका 4y अपॉन 3, ठीक है। तो अब हमें चाहिए x अपॉन y, तो ये 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16, और 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी ये 3 तो हम कैंसिल आउट ही कर चुके हैं, 3 है ही नहीं यहाँ, तो यहाँ कितना आएगा 5, 3 से 6 को 2 टाइम कैंसिल कर चुके हैं, तो हमारा आंसर होगा 16/5, दैट मीन्स 16:5, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, 16:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, राम किशन आर गुड इन बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, Ram and Hari are good in both biology and physics. Hari and Sachin and Gaurav are good in both physics and Hindi. Hari and Gaurav are good in both physics and mathematics.
सचिन एंड गौरव आर गुड इन बोथ केमिस्ट्री एंड हिंदी। देखिए समझिए, आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सब्जेक्ट का कॉलम बनाइए या फिर नेम्स का कॉलम बनाइए। अगर आप नेम्स का कॉलम बनाते हैं तो 4 पर्सन है यहां पर, फॉर एग्जाम्पल राम, किशन, ठीक है, राम, किशन, हरि, एंड एक और पर्सन है कोई सचिन, एंड नेक्स्ट है गौरव। ठीक, चलिए गौरव। अब आपसे क्वेश्चंस में बोला गया है कि राम एंड किशन बोथ आर गुड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। राम एंड किशन ये बायो में भी अच्छे हैं, केमिस्ट्री में भी अच्छे हैं, बायो एंड केमिस्ट्री। राम एंड हरि आर इट गुड इन बायोलॉजी एंड फिजिक्स। राम एंड हरि, तो राम तो ऑलरेडी बायो में गुड है, और किसमें है, वो फिजिक्स में भी है, एंड हरि जो है वो भी बायो एंड फिजिक्स। ठीक है। सचिन एंड गौरव आर इन गुड इन बोथ फिजिक्स एंड हिंदी। तो सचिन और गौरव किसमें अच्छे हैं, फिजिक्स में। सचिन फिजिक्स एंड गौरव भी फिजिक्स, एंड उसके साथ में क्या है, सचिन एंड गौरव आर गुड इन फिजिक्स एंड हिंदी, तो ये हिंदी में भी, हिंदी में भी। हरि एंड गौरव आर गुड इन बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो हरि फिजिक्स में भी अच्छा है और मैथमेटिक्स में भी, तो हरि फिजिक्स में भी अच्छा है और मैथमेटिक्स में भी। एंड ऐसे ही सेम गौरव भी मैथ फिजिक्स में अच्छा है और मैथमेटिक्स में भी, तो गौरव फिजिक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मैथमेटिक्स और लिख दिया हमने। ठीक है। एंड आपसे बोला सचिन एंड गौरव आर गुड इन बोथ केमिस्ट्री एंड हिंदी। सचिन एंड गौरव, तो सचिन किसमें, केमिस्ट्री में भी अच्छा है और हिंदी में भी, तो सचिन केमिस्ट्री में भी अच्छा है और हिंदी तो ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है। एंड गौरव भी किसमें अच्छा है, केमिस्ट्री और हिंदी, हिंदी ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये केमिस्ट्री हो गया। अब आपसे पूछा है हु इज गुड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हरि को देखते हैं, राम, राम किसमें, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों में अच्छा है, तो आप कहेंगे तीनों में अच्छा है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज गुड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हमें फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि डिलीट हो चुका है, तो चलिए फिर से बनाते हैं। राम, किशन, हरि, सचिन एंड गौरव। थोड़ा सा स्पीड में बनाते हैं इसे, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, राम एंड गुरु बोथ एंड फिजिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, दैट मीन्स बायो एंड केमिस्ट्री। ठीक है, बायो एंड केमिस्ट्री। राम एंड हरि आर गुड इन बायोलॉजी एंड फिजिक्स। राम एंड हरि आर गुड बायोलॉजी एंड फिजिक्स, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। ठीक है। हरि एंड सचिन, फिजिक्स। हरि, सचिन एंड गौरव आर गुड इन फिजिक्स एंड हिंदी। हरि, सचिन एंड गौरव, तो हरि किस किस में अच्छा है, फिजिक्स एंड हिंदी, तो हरि को ही पहले देखते हैं, फिजिक्स एंड हिंदी। ऐसे ही सेम सचिन भी किस में अच्छा है, फिजिक्स एंड हिंदी। ऐसे ही गौरव भी किस में अच्छा है, फिजिक्स एंड हिंदी। आगे देखेंगे, हरि एंड गौरव आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हरि एंड गौरव किस में गुड हैं, तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। हरि किस में है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड गौरव भी किस में है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो गौरव फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। सचिन एंड गौरव आर गुड इन केमिस्ट्री एंड हिंदी, तो सचिन किस में है, केमिस्ट्री और हिंदी, तो सचिन केमिस्ट्री, हिंदी ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड गौरव भी केमिस्ट्री एंड हिंदी, गौरव के लिए केमिस्ट्री लिख देते हैं, हिंदी ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपसे पूछा है हु इज गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन केमिस्ट्री, दैट मीन्स केमिस्ट्री तो यहां होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अच्छा होना चाहिए। तो देखो यहां तो केमिस्ट्री है इन चारों में, तो कौन हो जाएगा, हरि हो जाएगा, क्योंकि यही है बायोलॉजी, फिजिक्स, हिंदी और मैथमेटिक्स में। तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हु इज गुड इन फिजिक्स, बायो एंड हिंदी। चलिए फिर से बनाते हैं, राम, किशन, हरि, सचिन एंड गौरव। नेम भी याद हो गए, ठीक है। फिर से थोड़ा सा फास्ट में पढ़ेंगे, बायो, केमिस्ट्री, बायो, केमिस्ट्री। राम एंड हरि आर गुड इन बायोलॉजी एंड फिजिक्स। राम एंड बायोलॉजी एंड फिजिक्स, बायो एंड फिजिक्स। ठीक है।
सचिन गौरव आर गुड इन फिजिक्स एंड हिंदी। हरी, सचिन एंड गौरव। हरी किसमें है? फिजिक्स एंड हिंदी में। फिजिक्स एंड हिंदी। सेम, सचिन फिजिक्स एंड हिंदी, गौरव भी फिजिक्स एंड हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट है हरी एंड गौरव आर गुड इन फिजिक्स। हरी एंड गौरव फिजिक्स में, तो हरी एंड गौरव फिजिक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। सचिन एंड गौरव आर गुड इन बोथ केमिस्ट्री एंड हिंदी। सचिन एंड गौरव, सचिन किसमें? केमिस्ट्री और हिंदी, तो सचिन केमिस्ट्री और हिंदी। एंड ऐसे सेम गौरव भी केमिस्ट्री एंड हिंदी। ठीक है, हिंदी ऑलरेडी लिखा हुआ था। हु इज गुड इन फिजिक्स बायो हिंदी। फिजिक्स बायो हिंदी PBH सर्च कीजिए, कहां दिख रहा है आपको? PBH, और तो कहीं आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, तो आंसर होगा हरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। In each of the following questions, 4 words are given, out of which 3 are alike in some manners and the fourth one is different. Choose the odd one. टन किसमें? केजी में। किलोग्राम ऑलरेडी क्या है? वेट है। ये क्या है? ग्राम। ये भी क्या है? वेट है। आप तौलते हैं किसी चीज को, लेकिन जो गैलन होता है ये लिक्विड के लिए यूज होता है। कितने गैलन्स है? ठीक है, तो इसमें यही डिफरेंस हो जाएगा कि गैलन क्या है? अलग है। ये सभी क्या है? ठोस के लिए, सॉलिड के लिए, लेकिन ये किसके लिए? लिक्विड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड चाइना। तो आप देखेंगे अफ्रीका, अमेरिका एंड ये क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं, बट चाइना क्या है? कंट्री है, तो चाइना ही इसमें क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप देखेंगे 13 को रिवर्स किया तो कितना? 31, 24 को रिवर्स किया तो 42, 16 को रिवर्स किया 61, तो 35 को रिवर्स करेंगे 53 होना चाहिए था, लेकिन दिया कितना है? 58। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 2 5 25। तो देखिए 1 2 1 स्क्वायर प्लस 1 2, 5 स्क्वायर प्लस 1 26, 11 स्क्वायर प्लस 1 122। बट अगर हम 9 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 82, गिवन कितना है? 72। दैट मीन्स यही आंसर है आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 1 1 2 6 24 आपको फाइंड करना है मिसिंग नंबर। 1 1 2 6 24, व्हाट इज द नेक्स्ट? एंड 7 20। देखिए 1 से 1 का मल्टीप्लाई करें, 1 आएगा। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120। दैट मीन्स आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 7 15 27 43। देखिए 3 से 7 प्लस 4, 7 टू प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4 हो रहा है, और तो यहां कितना ऐड करेंगे आप? प्लस 20। दैट मीन्स 63 आवर आंसर। आवर आंसर इज 63। नेक्स्ट 41 अल्टरनेटिव सीरीज को फॉलो कर सकते हैं आप। 57 43 56 45 55 47। ठीक है, तो देखिए 41 से 53 प्लस 2 45 47 49, तो व्हाट इज द 40 प्लस 2 करेंगे 51। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहां देखेंगे 56 टू 57 टू 56 -1 -1 तो नेक्स्ट टर्म होता वो 52 होता, लेकिन वो आंसर नहीं है, हमारा आंसर है 51। नेक्स्ट चलिए, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, तो आपको पता है ये क्या इसका कैपिटल है, तो नागालैंड का कैपिटल क्या होगा? कोहिमा। ठीक, नेक्स्ट कंट्री प्रेसिडेंट, किसी भी कंट्री का जो नामित प्रमुख होता है, हेड जो होता है वो क्या होता है? प्रेसिडेंट। ऐसे सेम स्टेट का जो हेड होता है वो क्या होता है? गवर्नर। ठीक है, जिसके हाथ में शक्तियां नहीं होती लेकिन नाम का प्रमुख होता है, कि हेड है बस वो। ठीक है, क्यूबर्ड, तो ये 2D फिगर है, इसका ये 3D फिगर हो जाता है। ऐसे ही सेम स्क्वायर 2D है तो स्क्वायर का क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। सॉरी 2D 3D नहीं, इसका क्यूब से क्यूबर्ड बनता है, तो स्क्वायर को आगे क्या? रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है,